नाइटमेयर एक्सप्लॉइट और नाइटमेयर एक्सप्लॉइट, तो जिसका CVSS स्कोर लिटरली 10 था। ठीक है। रिसेंटली एक रिएक्ट टू सेल वर्नेबिलिटी भी आई थी जिसका स्कोर 10 था। तो सेम इसका भी अगेन स्कोर 10 आया। तो लाइक 2 महीने में हमारे पास इतने सारे लाइक 2 वर्नेबिलिटी ऐसी आ गई जिसका लिटरली सिवियरिटी 10 था। ठीक है। दैट्स वाई मैंने ये कंडक्ट करा सेशन कि हमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या था, लाइक एक्चुअली ये एक्सप्लॉइट हुई कैसे थी N10 की। ठीक है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सो लेट्स इमेजिन there is a tool who automate all the workflows. Okay, but there is someone on the internet who can access your tool without even login. Okay, that's the main vulnerabilities. Okay, like that, and that tool is N10. ठीक है। वही N10 सारे ऑटो टास्क को ऑटोमेट कर देता है, सारे वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर देता है। उसी N10 में हमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिला जिसमें हमने पूरा अकाउंट, पूरा फुल उस टूल का फुल कंट्रोल हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है। दैट्स वाई इसकी सिवियरिटी 10 थी। सो या तो N10 होता क्या, जो मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन एक बार आप में से कोई बता सकता है तो बताए कि व्हाट इज N10। कोई भी। ओके, हाँ सही है। एनीवन एल्स, रुद्र? Yeah, so as Shivangi mentioned that it eases our process. So Anitin, what she told that we merge components here. So Anitin works on a node-based architecture. You must have seen while in the pictures or some videos of Anitin that there are some blocks and arrows are connecting to each other. So it is that thing is only called node-based architecture, and that signifies that all those blocks are the different processes, different APIs and everything. And it is, and we what Anatane is doing, it is connecting all those components and making that automation, like we are connecting different workflows, and a continuous workflow of all those workflow are achieved through Anatane by merging all those automations. And I would also like to add, it is a powerful tool for security automation also. Like we could automate vulnerability scanning, alerting, and OSINT gathering. These stuff can also be done on Anatane, and it is also a major target for attackers, which we will learn today. So yeah, you. Yeah, right, bye. So yeah, you both are totally correct. N10 is the automating tool or open source automating tool which help us to provide a services to automate the task. Yeah, without even extensive coding. So this is the overview of the or summary of the vulnerability. Like this is a CVID of the vulnerability, and the exact vulnerability type is, you can see this image. Let's take an example. We have a API and we have a webhook. Okay, and I need to automate a task, and the task is a WhatsApp notification. ठीक है। लाइक मेरे पास है कि जब भी मेरा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे, ओ सॉरी, जब भी मेरे पास एक कोई भी नया मैसेज आए तो मेरे को डायरेक्टली नोटिफाई कर देना, नोटिफिकेशन भेज देना मेरे फोन पे। ठीक है, ये सिंपल सा बस एक टास्क है। एंड वी नीड टू, वी हैव अ API and webhook. Okay, and we need to assign that task to API and webhook both. ठीक है। तो when we use the API तो क्या होगा? हाँ रुद्र।
I just wanted to know that so So this this webhook is similar to that voice is repeating. Pratham, can you mute? क्या हुआ रूथ फिर से बोलना. Can you mute? So I wanted to ask about this webhook and what's the difference between webhook and WebSockets? I think WebSocket is also the same thing. It is also used to send the real-time data, no? हाँ, but WebSocket use in the backend whenever we need a real-time data from one server to the client. Yeah, totally right. But that webhooks are used in the N10, which automate the task in the real time. They will send the WebSocket send the message in the real time from server to client, but the webhook used to automate that task. मतलब समझ रहा है? Got it, got it. Hmm. So basically, coming to the example, like uh, we have a sorry to interrupt you, Pratham. Let me give a clear understanding. I think Rudra. He Okay. asked like what is the difference between webhook and WebSocket. So basically, Yeah. in webhook there will be only one way communication. Uh, Suppose you want to trigger something, so you can use webhook to trigger that thing, but that will be only one way. But in the WebSocket there will the full duplex. It work on fully duplex. So there will the Okay. communication will be in both way. Either a server can send, either a client can send the request, something like that. Bidirectional. Yeah, Okay. bidirectional. Full duplex. It work on full duplex, but it work on like uni. Okay. I So think in it's clear. N18 we use webhook for a single way communication. Now, so what communication it is doing? Do you have any idea? Like it Suppose you sends want like to automate. Suppose you want to automate anything, and you want at that time you want. Suppose you want tomorrow at 8 p.m. You want to host. You want to post any content on LinkedIn. So it is going to trigger at that time. So that is basically doing N10. Okay, okay. So it is sending a prefixed like a Correct, command, correct, like it correct, has been correct, correct. those nodes. In the backend, it's notifying the whatever the time or whatever something like that. So it is going to trigger at that time. I got it. Those nodes, it will be communicating in Correct, those correct. scenarios. It will be sending the information. Okay, got it. Thank you, sir. yeah, and in my upcoming slide you get better understanding about webhook. Like ये जो एग्जांपल है उसमें अभी एक आगे एग्जांपल है जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा webhook क्या है. तो हाँ, यहाँ पे भी हम बेसिकली एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो जैसे एक व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे मेरे मेरे को ऑटोमेट करना है, वैसे ये होता है, लेकिन मैं बस चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा व्हाट्सअप पे कोई भी नया मैसेज आए तो मेरे को नोटिफाई कर दो, मेरे को नोटिफिकेशन पुश कर दो मेरे फोन पे, ठीक है. और मैं यूज कर रहा हूँ एपीआई और वेबहुक दोनों, ठीक है. तो अगर मैं एपीआई यूज कर रहा हूँ तो इट विल टेक टू मच टाइम, एंड मेरे को बार बार एपीआई से पूछना पड़ेगा क्या कोई मैसेज आया नया, नहीं, क्या मैसेज आया नया, नहीं, क्या मैसेज आया, हाँ. बट इन दी वेब हुक we just need to tell them, yeah, if there is any new message will come, so please notify me, that's it. ओके, तो जब भी कोई नया मैसेज आया वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन भेज देगा, हमें बार बार उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है. तो इसी वेबहुक का N10 में यूज होता है. अब ये एक एग्जांपल है जिससे और अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे ये N10 का है, ठीक है. यहाँ पे मेरे को ऑटोमेट कराना है, मैं एक पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. एक पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक चैटबॉट है, ठीक है. मैं चाह रहा हूँ जब भी मेरे से ये पीडीएफ कोई मांगे, तो मतलब जब भी मेरे से ये कोई डेटा मांगे तो डायरेक्टली इस पीडीएफ का डेटा मुझे फटाफट शेयर कर देना, ठीक है. जैसे कि ये रहा, ठीक है. Hi there. Like, can you provide me with the information about the product we offer at the Biosense Innovations? So, ये जैसे ही इसने पूछा, उसने ऑटोमेटिकली और इंस्टेंटली वो वाला डेटा प्रोवाइड कर दिया जो कि इस पीडीएफ में था, ठीक है. तो ये मान लो एक ऑटोमेट कराया गया एन10 से, ठीक है, जो कि यहाँ पे आया.
तो यहीं पे वो एग्जैक्ट वर्नेबिलिटी पाई गई थी, ठीक है। अब इसी के बैकएंड को हम एनालाइज करते हैं कि इसके बैकएंड में क्या हो रहा था, ठीक है। वर्नेबिलिटी कहाँ पाई गई, जैसे ही उसने मांगा ये वाला डेटा कि इस पीडीएफ का डेटा मुझे दे दो, इसने इस तरीके से मांगा, तो जैसे ही इसने उसको फेच करके लाया तो उसी में हमारा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पाया गया। ये रहा उसका मेन था पार्ट, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ वैसे तो। हम्म तो बैकएंड में ना कुछ ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो इसमें आप कंटेंट टाइप देख सकते हो क्या है, ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। और ये कंटेंट टाइप उस डेटा का है जो कि इस पीडीएफ में था, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा कि वो पीडीएफ अपलोडेड है जो कि फैच होके चैटबॉट पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मेन थी अटैकर ने क्या एनालाइज किया कि उसका कंटेंट टाइप पे जो जा रहा है, कंटेंट टाइप हेडर तो वैलिडेट ही नहीं हो रहा है। तो कंटेंट टाइप हेडर वैलिडेट नहीं हो रहा था, तो उसने अटैकर ने यहीं पे उस मतलब अटैकर को यहीं पे ट्रिगर हुआ और उसने उसी को मैनिपुलेट करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया, ठीक है। तो मॉडिफाई रिक्वेस्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे, मॉडिफाई रिक्वेस्ट में उसने क्या किया, ठीक है। अटैकर कैन चेंज the application change the content type header into the application JSON form, एंड उसने पूरा बॉडी ही चेंज कर दिया, जिसमें उसने क्या लिखा, ठीक है, कि एक मतलब फाइल से और एक फाइल पाथ दे दिया और ओरिजिनल फाइल नेम उसी पीडीएफ का रखा जिस इस पीडीएफ का जो नाम था, ठीक है। तो उसने जस्ट क्या किया कि उस फाइल पाथ से जो भी डेटा वो आए वो फेच करके दे दो। एक्चुअल में ये यही कर रहा था, ठीक है, कि ये पीडीएफ का जहां पे भी फाइल पाथ था उस फाइल पाथ से ये पीडीएफ का डेटा फेच हो रहा था। तो इसने क्या किया, कंटेंट टाइप को चेंज किया और इस फाइल पाथ को चेंज किया, पूरा बॉडी पेस्ट करा और उसने फेच करा लिया। तो एक्चुअली में ये ऐसे वर्क कर रहा था, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल डॉट फाइल पाथ, ये कुछ इसका रिक्वेस्ट बॉडी है जिसमें ये कोड और कमांड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। क्योंकि वेब हुक ऐसे ही वर्क करता है, वेब हुक एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करा यहाँ पे हैकर के लिए, ठीक है, जिसके हेल्प से बेसिकली उसने इंस्टेंटली डेटा फेच करवा लिया। अब यहाँ पे उसने etc डॉट पासवर्ड लिखा, तो अगले वाले में आप देख सकते हो क्या आया, प्रोवाइड मी अ डेटा विद दिस दिस दिस, तो उसने डायरेक्ट रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पे परफॉर्म हो गया और उसने डायरेक्ट ये फाइल पाथ सारी भेज दी। तो बेसिकली ऐसे ही एनएटन एक्सप्लॉइट हुआ था। तो इसमें कोई डाउट है या कुछ ऐसी चीज, अनूप सर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ इसमें इनपुट देना चाहे तो। क्या था एक्चुअली, सॉरी आई डिड नॉट लिसन। नहीं, मैं वही बोल रहा था कि आपको कोई इनपुट देना हो तो सर दे सकते हो। नहीं नहीं, क्लियर है। एनी डाउट, रुद्र, सौम्य? No, no, Pratham got it. It was good. ओके, तो हाँ बेसिकली यही हुआ था मेन। तो उसी को ट्रिगर करके उसने तो मेन थिंग क्या आता है ना कि कभी कभी कुछ हेडर्स ऐसे रह जाते हैं जो वैलिडेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो वहां यहाँ पे वही अटैकर ने फाइंड कर लिया, ठीक है, कि कंटेंट टाइप तो वैलिडेट नहीं हो रहा और बल्कि यहाँ पे कंटेंट टाइप वैलिडेट होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर कंटेंट टाइप में जा रहा है कि इस फॉर्म का डेटा हमें फेच कर दो जो कि इस पीडीएफ में है। तो उसने वो वैलिडेट नहीं किया, तो उसी के थ्रू ये पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मेन यही था। तो इसका रिमीडिएशन की अगर हम नॉर्मली बात करें तो रिमीडिएशन, पहली बात तो ऑब्वियसली वर्जन को अपडेट कर लो, ये तो रहेगा ही कि आप वर्जन अपडेट कर लो, और प्लस स्ट्रिक्ट वैलिडेशन होना चाहिए। चाहे कोई सा भी रिक्वेस्ट में हेडर हो, चाहे कोई भी हेडर हो, सारा कुछ यहाँ पे वो वैलिडेट होना चाहिए। और जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो खासकर वैलिडेट होने चाहिए, ठीक है। और इनपुट ब्लॉकिंग लाइक इट प्रिवेंट इनपुट ब्लॉकिंग, लाइक कोई भी अगर फाइल पाथ से
कोई सेंसिटिव फाइल फेच करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे इंस्टेंटली ब्लॉक होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, उसने जैसे ही सेंसिटिव फाइल को फेच करने के लिए रिक्वेस्ट करी, उसने डायरेक्टली फाइल और फाइल पाथ शेयर कर दिया। तो तो इनपुट ब्लॉकिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट वैलिडेशन होना चाहिए, और अपने वर्जन्स को अपडेट करना चाहिए। तो मेन N10 की वर्नेबिलिटी यही थी। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। और थंडर साइफर पे इसका लैब भी आ चुका है, अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हो। वो CLI बेस है, डायरेक्टली आप सेल ले सकते हो उस चीज़ का। तो वैसे भी कर सकते हो। बाकी कुछ दिन बाद इसका वेब बेस भी आ जाएगा, जिसमें आप बर्ब सूट के थ्रू भी इसको परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था बर्ब सूट के थ्रू कैसे हुआ था। तो यही था, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? प्रतीक भाई तूने लेट कर दिया। सॉरी लॉर्ड सर। चल कोई बात नहीं। यार हेलो उसका प्रथम, एक बार आप वो वैलिडेशन वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? ये रिमीडिएशन जो मैं बता रहा था, कि ये यस वाला वैलिडेशन। यस यस, रेमेडिएशन रेमेडिएशन, यस। हम्म तो ये बेसिकली स्ट्रिक्ट वैलिडेशन होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट वैलिडेशन कहाँ होना चाहिए। मेन ना देखो, ये कंटेंट टाइप को वैलिडेट नहीं कर रहा था, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट चली जा रही है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेट होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना हम, इनपुट सारे इनपुट वैलिडेशन होना चाहिए, हर इनपुट फील्ड को वैलिडेट करो, कोई भी वहाँ पे सेंसिटिव चीज या स्पेशल करेक्टर नहीं डाल जाना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट वैलिडेशन होना चाहिए हर हेडर का। जो भी रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, वहाँ पे जितने भी हेडर्स जा रहे हैं साथ में, लाइक कंटेंट टाइप, होस्ट, ओरिजिन, यहाँ पे बहुत सारे हेडर्स होते हैं, तो उन सबको वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट वैलिडेशन होना चाहिए इस चीज का, तो वो लिख रखा है यहाँ पे। ओके, थैंक यू, गॉट इट। यस। और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। रुद्र सब क्लियर है? प्रतीक तो सुना ही नहीं, साइफर वाली प्रतीक है। स्ट्रीम भी उनने अभी ऑन कर रखी है, दोनों साइमल्टेनियस चल रहा है। अच्छा, तो बेसिकली वर्नेबिलिटी यही थी, ठीक है। तो हमें बस मेन वही ध्यान रखना था, ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं, और रिएक्ट टू सेल भी पता है ऐसी है, कॉम्प्रोमाइज हुआ था, लेकिन मतलब प्रोसेस ये नहीं था उसका, पूरा डिफरेंट प्रोसेस था। उसमें तुम डी सीरियलाइजेशन भी समझते कि इनसिक्योर डी सीरियलाइजेशन के थ्रू कैसे चीजें हुई थी, वो भी वैसे ही थे। तो मेन यही था यहाँ पे। अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर इसको रैप अप करेंगे। Okay, that's मैं ये PDF शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि इस PDF में जैसे एक्सप्लॉइट हुआ है उसको ढंग से आप सब समझ भी पाओगे, ठीक है। तो मेन एंट्री पॉइंट हमारा क्या था, वेबहुक, ठीक है। तो मैं ये आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं इसको रैप अप करता हूँ, मीट को। और हो सके तो अगले मीट पे इसका प्रैक्टिकल भी हम दिखा देंगे, ठीक है। sure. हाँ Yes, शिवानी। हम्म
काइंड ऑफ ऐसे ही हुआ था एग्जैक्टली, बट हाँ थोड़ा सा बैक एंड। एक मिनट। हाँ प्रतीक। हाँ, मेन वैलिडेशन ही नहीं हो रहा था कि जो भी बैक सर्वर पे चीजें जा रही थी ना, वहां पे चीजें वैलिडेट नहीं हो रही थी, जिसके थ्रू वहां पे पूरा फुल कंट्रोल, सिस्टम का फुल कंट्रोल मिल गया। उस काइंड ऑफ एसेसमेंट। यस। नो नो नो। in the new in the new version they will patch that vulnerability. So yeah, in the remediation I also write, please update your n10. Yeah, so please update your n10 in your chatbot. Okay, हाँ प्रतीक। शिवांगी ने जो मेंशन किया, क्या उसको प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कंसिडर कर सकते हैं? आई थिंक वही चीज है। नहीं 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 भाई, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और यहाँ पे बहुत फर्क है। प्रॉम्प्ट, हाँ, अगर तू उसको सिर्फ, जैसे मैं एक बार पीडीएफ काइंड में ऑफ दिखाता हूँ फिर से। भाई काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन में बोल सकते हो उसको। हाँ, वही काइंड ऑफ वही नहीं मैं सोच प्रॉम्प्ट रहा था, नहीं इंजेक्शन। कॉमन। नहीं बोल सकते हैं भाई, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। सुनो। नहीं, लेट मी अंडरस्टैंड क्लियर यू। देखो, अ, ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कब होता, जब तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो, डायरेक्टली यहाँ पे भेज देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भेजने के लिए भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई है, यहाँ पे चीजें चेंजेस हुई है, तब सर्वर पे भेजा गया है, तब ये एग्जीक्यूट हुआ है। कि अगर ये डायरेक्ट ये वाला स्टेप नहीं होता, अगर ये स्टेप नहीं होता, मतलब जो हैकर ने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया रिक्वेस्ट में सर्वर पे भेजने से पहले, अगर वो परफॉर्म नहीं होता, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जंप हो जाता, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी हुई है, यहाँ पे कंटेंट टाइप को चेंज करा गया है, देखो। या अब कंटेंट टाइप। हाँ भाई। ये जो समझा। यहाँ पे मॉडिफाई ने कर रखा है, तो वो तो इस वाले एडिटर में कर रखा है। मैं शिवांग उनके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था कि उनने जैसे बोला कि यूजर ने कुछ इनपुट दिया, और उसके बाद सर्वर ने क्या किया, वहां पे क्रेडेंशियल्स वहां पे शो किए। तो यूजर ने जो इनपुट दिया था, वो आई थिंक वो वाले सिनेरियो में जो मलेशियस इनपुट था वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के थ्रू हुआ था। यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि बहुत क्लियरली बॉबसूट पे इसने वो कर रखा है, रिक्वेस्ट मॉडिफाई करी है। हाँ भाई, तो वही, अब ये साइबर फील्ड की नहीं है ना, तो इसके हिसाब से मैं अंडरस्टैंड करवा रहा था कि काइंड ऑफ ऐसे ही हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम्म। सो और किसी को कोई डाउट है इसमें? रुद्र, और कुछ डिस्कस करना हो या सब क्लियर है, या कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करनी हो? हाँ, सब सब क्लियर क्लियर है भाई। और क्या डिस्कस करेंगे? मतलब इसके ओके। बारे में तो क्लियर है ना सारा, कैसे अटैक हुआ ये। कंटेंट वही। टाइप कंफ्यूजन वनरेबिलिटी है ये। यहाँ पे कंटेंट टाइप के उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं ना, तो इसका नाम कंटेंट टाइप कंफ्यूजन ऐसे वनरेबिलिटी का नाम कह सकते हैं। हाँ भाई, मैं तो वही कंटेंट टाइप कंफ्यूजन के थ्रू हमने रिमोट कोड एग्जीक्यूशन किया। बाकी हाँ सब तो क्लियर हो गया, जो भी उस पे है। हाँ हाँ, सब क्लियर है। एक बार मेरे को क्लियर कर दो बाकी सब, तनिष्क, सौम्य। ओके, देन रैप अप करते हैं। अगले मीट पे होपफुली प्रैक्टिकल इसका दिखाया जाएगा। अगर ट्राई हैकमी पे आ चुका होगा तो, नहीं तो थंडर साइफर का भी है। और एक चीज मैं मेंशन करना चाह रहा था। सबसे पहले तो गुड हम्म। भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सीएच के लिए। और
शिवांगी जी ने जैसा बोले को उस समय बोला था कि अभी भी क्या उस मॉडल में वल्नरेबिलिटी है। द थिंग इज कि एक वल्नरेबिलिटी पब्लिक तभी की जाती है ना जब वो पैच हो रखी होती है, एल्स उसको कोई भी हाँ, एक्सप्लॉइट कर ले। सही बात है। थैंक्स भाई। कंग्रेचुलेशन भाई। और थैंक यू। भाई बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट भाई, बहुत बड़ा। हाँ, चलो, थैंक यू। बाकी किसी को कुछ शेयर करना हो क्या चल रहा है साइबर में, साइबर सिक्योरिटी में, तो कर सकते हैं। मीट ऑफ है, वरना 5 मिनट में हम रैप अप ही कर देंगे। अरे ये क्या बोल